to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. The Constitution says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Are the politicians taking us the right path? Is the ruling class taking us in the right path? Is the opposition playing the role of the constructive opposition? That is what we are going to talk to the people today. We have a guest, esteemed guest, the guest panel. We have fantastic people. We got Ali Daruwala from the BJP. Daruwala Sahab, welcome to the show. Nizamuddin Ryan Sahab from the Congress. Yes, sir. Vande Mataram. Vande Mataram. And Advocate Inderpal Singh from the NCP. Daruwala Sahab, welcome to the show. Nizamuddin Sahab, welcome to the show. Inderpal Singh ji, welcome to the show. आज प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी पैलेस्टाइन प्रेसिडेंट से बात किया. उन्होंने कहा कि our hearts are with the people of Palestine. We believe in a peaceful solution to the Palestine cause. और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि जो टेररिज्म है उसके खिलाफ हम लोग सख्त है. जो हॉस्पिटल में डेथ हुआ, we mourn for that. इंडिया का पॉलिसी एब्सोल्यूट क्लियर है. इंडिया, इजराइल, पैलेस्टाइन. तो we'll start from you, Daruwala Sahab. The Prime Minister calls up Palestine President और उन्हें कहा कि we are with the people of Palestine. Our relations are age old. हमारा पॉलिसीज पहले, but terrorism के खिलाफ हम लोग सख्त है. We condemn terrorism of any kind. Daruwala Sahab, we'll begin with you. Good evening, Pradeep ji. This Yes, is a sir. welcome statement by not mine, our Prime Minister. This shows we are with the Republic of Palestine and not with the terrorist organization, the Hamas. Over here, a life from whichever side of the country, may it be Israel or Palestine, not a single life should be lost, and that's the basic fundamental of Islam and any religion in that case, sir. Over here, the attack on innocent children and ladies has been condemned by my Prime Minister, and we as a party, we stand by it, and we stand by the Republic of Palestine, and I'm making myself very clear and very assertive on this matter, sir. So you condemn terror, you're condemning Hamas, but at the same time you are with the people of Palestine. Yes, with the Republic of Palestine, the elected democratic Republic of Palestine. I'm back to you, Inderpal Singh ji. First I will speak to Nizamuddin Ryan Sahab. Ryan Sahab, प्राइम मिनिस्टर अभी बात किए पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट से, कहा कि हमारे पुराने संबंध है और उसको हम लोग कायम रखते हैं. हॉस्पिटल डेथ हुआ है, हम उसका कंडेम करते हैं, मगर टेरर को सबको कंडेम करना पड़ेगा. रायन साहब, क्या यही सेम पॉलिसी है जो इंदिरा गांधी जी के वक्त से अब तक वो कंटिन्यूस है? क्या आपको कोई चेंजेस महसूस हो रहा है? ये पॉलिसीज तो वही है, और फॉरेन पॉलिसीज जो है वो रोज नहीं बनती. जो पॉलिसीज पहले डिसाइडेड थी उसी पर हुआ. लेकिन आपने देखा कि ये जब से युद्ध हुआ है, इतने दिनों में 3 बार स्टैंड चेंज कर चुके हैं प्रधानमंत्री. मैं जो भारत में जो घटनाएं पहले हुई है, अटल जी का भाषण है, अटल जी ने जिस तरह से फलस्तीन के साथ खड़े रहे, उसी तरह से मोदी जी को भी पहले दिन से स्टैंड लेना चाहिए. दुनिया के किसी भी कंट्री ने टेररिज्म का सपोर्ट नहीं किया है कभी भी, कहीं भी, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे हमारे देश से बाहर हो. लेकिन फलस्तीन के साथ जो हो रहा है, पिछले 90 वर्षों में आपने देखा होगा कि उन बेगुनाह बच्चों को जिनका कोई संबंध नहीं है, जिस तरह से मार रहे, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं. और ये यूरोप के वही देश हैं जो किसी के साथ भी नहीं खड़े होते, वो खाली अपने स्वार्थ के लिए खड़े होते हैं. इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने देखा होगा कि फर्स्ट डे, कांग्रेस फर्स्ट डे से, और उनके एलाई कांग्रेस के सभी जो हमारा इंडिया अलायंस है, वो सारे लोग फलस्तीन के साथ उसी दिन खड़े थे. आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे. लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार अपना स्टैंड चेंज किया. तो ये चाहिए उनको कि जो पॉलिसी है, जो हमारे पुराने लीडरों के दौरान तय हुआ, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे अटल जी हो, चाहे इंदिरा गांधी का दौर रहा हो. क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा है कि फलस्तीन का जो इशू है, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो आपको उनकी मजलूमियत और उनकी बेबसी दिखेगी. लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखेंगे कि एक मुस्लिम कंट्री के नाते अगर ऐसा हो रहा है, तो फिर इजराइल से अपने रिलेशन भी खत्म करना चाहिए. और हम तो आज भी डिमांड कर रहे हैं
कि जो घटना हुई है उसके विरोध में भारत सरकार को चाहिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशन उनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करके उनके जो एम्बेसडर हैं उनको रिटर्न किया है। तो हमें भी चाहिए कि अपने प्रोटेस्ट के टाइम उनके एम्बेसडर को हिंदुस्तान से बाहर करना चाहिए। राइन साहब, निजामुद्दीन साहब, अली दारूवाला साहब, तो बीजेपी, आपको कहना कि उन्होंने कहा कि इस्लाम कंडेम्स टेरर, इस्लाम कभी टेरर के साथ हो ही नहीं सकते, दारूवाला साहब का स्टेटमेंट था। प्राइम मिनिस्टर हमास के विरोध थे। सही कह रहे हैं। देखिए, इस्लाम और टेररिज्म का कभी साथ हो ही नहीं सकता। ये तो कुछ बदनाम लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दारूवाला साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस्लाम और टेररिज्म का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट का जो मैसेज है वो इसी का है कि पीस जो है वो उनके दौर में ही शुरू हुआ। तो इसके लिए जो पॉलिसीज देश की हैं, जो हमारे पुराने लीडरों ने, चाहे उसमें आदरणीय अटल जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, या जो हमारे एलआई साथी हैं उनके जो सीनियर लीडर्स हैं, सब एक का जो पॉलिसी है उस पर सब एक साथ एक स्टैंड पर हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से हिंदुस्तान में एक ग्रुप ऐसा तैयार किया जा रहा है जो इजराइल को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, आपको चाहिए तो वो वीडियोस मैं शो कर सकता हूं। तो इसलिए चाहिए कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी जवाबदारी बनती है कि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। और चूंकि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज के लोग अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके साथ हटा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने बेगुनाह बच्चों को मारा है, और आज नहीं, ये युद्ध 90 सालों से हो रहा है, तो आप उसको युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए। तो जब आप उसको युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको लगेगा फिलिस्तीनियों के साथ क्या तकलीफ है, क्योंकि जमीन उनकी है, रहाइश उनका है, सारा कुछ आप जबरन कब्जा। ये बात खुद अमेरिका कहता है, ये बात खुद ब्रिटेन कहता है, उसके बावजूद भी आप उनकी मदद को जा रहे हैं, तो ये एक चीज गलत तरीका है। I'll come to Inderpal Singh ji, then I will come to Ali Daruwala साहब, because he थोड़ा डिफर है जिस प्रकार से निजामुद्दीन राइन साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर चेंज हिज स्टैंड 2-3 टाइम्स। दारूवाला साहब, I'll come back to you, but first we'll go to एडवोकेट इंदरपाल सिंह जी। सिंह साहब, ये you are with Ajit Pawar faction, that is the original NCP that you believe, तो आपका स्टैंड सरकार का स्टैंड है, मगर शरद पवार साहब ने हाल ही में कहा कि वी आर विद पैलेस्टाइन, इंडिया हैज ऑलवेज बीन विद पैलेस्टाइन। सो एक दरार सा पैदा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर कहा कि हमास को डिनाउंस किया, टेरर अटैक्स में अनाउंस। तो पवार साहब का स्टेटमेंट आप कैसे देखते हो इंदरपाल सिंह साहब? नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे दारूवाला साहब ने कहा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम रिपब्लिक ऑफ पैलेस्टीन के साथ हैं, और ये जो भी टेररिज्म की घटना है उसको हम कंडेम करते हैं। और जैसे कि एक बात और कही गई कि इस्लाम को टेररिज्म के साथ जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, और इस्लाम में तो बिल्कुल इस तरह के गुनाह करना लिखा ही नहीं है। तो ये सब जो उसूल हैं इन सब के साथ हैं हम लोग, और हम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ में हैं। जो वो निर्णय इस समय ले रहे हैं मोदी साहब, वो एकदम सक्षम निर्णय ले रहे हैं। और मोदी साहब की जो एक छवि है पूरे ये कहेंगे कि पूरे विश्व में, वो विश्व विख्यात नेता के रूप में है, और वो जो अब स्टैंड ले रहे हैं उनका स्टैंड बहुत मायने रखता है। और जो भी स्टैंड अभी मोदी साहब ने लिया है वो स्टैंड पूरे देश के और पूरे विश्व के हित में लिया है। और डे वन से, जब से मोदी साहब आए, उन्होंने कहा है कि हम टेररिज्म का कंडेम करते हैं, और हम टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने नोटबंदी को लाया, टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। और मुझे लगता है कि जब से मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, टेररिस्ट अटैक भी इतने हुए नहीं हैं। और ये अगर कहीं आप बता दें कि कहीं टेररिस्ट अटैक भी कंट्री के अंदर हुए या कोई हाईलाइट हुआ है, तो इस तरीके से एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिनकी एक छवि है कि जो टेररिस्ट के एकदम से खिलाफ है, और जिनके आदर्श और जिनकी भावनाएं ये कहती हैं कि टेररिज्म का निषेध किया जाए, तो उस प्रिंसिपल के ऊपर जाकर हम इसमें इनके साथ में, हम रिपब्लिक ऑफ पैलेस्टीन के हम साथ में हैं।
इंद्रपाल सिंह साहब, मगर आज जिस प्रकार से नारायण राणे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके शरद पवार साहब ने जो कहा है उनको आगे बढ़ा, तो राइन साहब आपके पास आता हूं, कहा कि पवार साहब को क्लियर कट जो मोदी साहब ने हमास का टेरर अटैक्स को डिनाउंस किया था और राइट ऑफ इजराइल टू रिटेलिएट, इस पे मोदी साहब एकदम स्पष्ट थे। तो पवार साहब का चेंजिंग स्टैंड, राणे साहब ने कहा कि यह गलत है शरद पवार साहब का स्टैंड, तो उस पर कुछ आप टिप्पणी करना चाहोगे? वो पवार साहब का अपना स्टैंड है। इस समय मैं अजीत दादा और हमारी पार्टी एक अलग एजेंडा के साथ में काम कर रही है और हम नेशनल यूनिटी के हित में है। हम कोई भी ऐसा स्टेटमेंट इस नाजुक स्थिति में जारी करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरे विश्व के खिलाफ स्टेटमेंट होगा। तो इसलिए मैं पवार साहब के किसी भी इस समय के स्टेटमेंट के साथ में इतना सहमत नहीं। शरद पवार जी के स्टेटमेंट के साथ आप सहमत नहीं है इंद्रपाल सिंह साहब? दैट्स व्हाट यू से। We'll come to Ali Dharuwala साहब। Dharuwala साहब, now you got the right to whatever जो राइन साहब ने कहा कि इसको अब टेरर स्ट्राइक्स इन टोटो नहीं देखना चाहिए, आपको इसको वॉर के हिसाब से देखना चाहिए, और ये टेरर एक्ट कम और वॉर ज्यादा है, और वॉर के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो ये टेरर स्ट्राइक नहीं है। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने, दारूवाला साहब, ये चेंज स्टेटमेंट राइस, निजामुद्दीन राइन साहब ने कहा। Ali Dharuwala साहब, your comments on what Ryan साहब said? We can't hear him. By a terrorist organization called Hamas, which is backed by Boko Haram, and these two terrorist organizations are in the hit list of the world, not India. Sir, this list is in the world terrorist list. The attack was not by the Republic of Palestine, it was by the terrorist organization. It was 7,000 missiles. Had they been on military establishments, I would have understood, but this was on civilization, on hospitals, and on densely populated citizens of Israel. We condemn that. My Prime Minister condemned. I would like to set the record right. B, over here, any form of aggression where the killing is not welcome by my Prime Minister, by India, that stand is very clear. Yeah, in this gambit of war, we are with Israel because the first aggression came from Hamas. So my stand is clear on the day one, what my Prime Minister said. Today, what happened is this attack done by the soldiers on a hospital is what my Prime Minister condemned. I stand by it and I endorse it. A military war is on military establishments and not on civilization. It is the rule set by international warfare standards. So I'm setting it right. This gentleman may not be aware. I do not blame his ignorance. He has his right of ignorance. A. B. The party, the Congress, what he represents and what he's trying to support, what Honorable Sharad Pawar ji said as to Hamas, the attack is done, is supported. He supported that in the today's statement made in the morning. And to retaliating to this, Minister Piyush Goyal and our honorable representatives of the BJP said, if he's so much in conveyance and in agreement with Hamas, why doesn't he send his daughter Supriya Tai Sule? The Assam Chief Minister did not mince with his words. If he's so much in solidarity with Hamas, he should send his daughter to support. He did not say fight, to support the cause. So his stand gets clearer. So I am not refusing and I am not refuting, and I am sticking by what our Chief Minister of Assam said. He was very right. If you are supporting, send aid. If you are in opposition, just shut up and sit. Because in Israel, what we could see, the Prime Minister and the leader of opposition are together. The Prime Minister is fighting on the war front. The opposition Prime Minister, who left 6 months back, has picked up guns and he's on the front fighting soldier with shoulders to shoulder. This is called unity. And in India, what are we showing is our Prime Minister is saying something and our opposition is saying something. What do you say? They are just opposing for the sake of opposing. They are trying to promote that they are appeasement politicians. By saying this, by supporting the Boko Haram and the Palestine oppression,
they are trying to become emerging as Muslim leaders. It is totally wrong, and we condemn this. The Muslims of India are not fools. You cannot fool them. Me being a Muslim, I endorse my Prime Minister, and any sort of aggression is condemned. But over here, Hamas is at fault because they did the first attack, and Hamas is not the official representative of Palestine. Back to the studio, Pradeep sir. Yeah, निजामुद्दीन राइन साहब, दारूवाला साहब फ्रॉम द बीजेपी क्लियर कट कहा, उन्होंने आपने सुना कहाँ कर कि जो जिसका निंदा करना चाहिए उसको निंदा, ये इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, आपको आइसोलेशन में देख नहीं सकते, ये जंग नहीं है, ये एक यहां से शुरुआत कीजिए कि हमास ने अटैक कर दिया, टेरर स्ट्राइक है, बच्चों को मारा, बच्चों को गला काट दिया, इनोसेंट 200 स्टूडेंट्स को गन डाउन कर दिया, तो आप हाउ यू गोइंग टू, ये तो बोले कि इस्लाम तो इसको सिखाता नहीं है, कोई भी मुसलमान उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। दारूवाला साहब बिल्कुल अलग, टोटली रॉन्ग, उल्टे जा रहे हैं। उनको शायद पता नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री की बात उनका मंत्रिमंडल नहीं सुनता। उनका मंत्री कल ही जो है पीयूष गोयल, उनकी बात को रिफ्यूज कर दिया, उनकी बात को नहीं सुनता। वो कुछ कह रहे हैं, पहले दिन वो कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, इजराइल से मेरा डिप्लोमेटिक रिलेशन है। उसके बाद जब पूरी इंटरनेशनल बरादरी पे दबाव पड़ा तो वो जाकर उसके बाद दोबारा खड़े हुए कि नहीं अब हम फिलिस्तीन के साथ खड़े होंगे। उनकी अपनी जो राजनीति का एजेंडा है वो हिंदू मुस्लिम एजेंडा है। वो ये देख रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हिंदुस्तान के मुसलमानों का और मेरा क्या रोल आएगा। अभी इन्होंने ये कहा कि हम अटैक कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि टेरर, अरे पहले अपने टेरर को तो ठीक करो। आपके यहाँ क्या हो रहा है मणिपुर में, वो जो जिस तरह से वहां के औरतों को आपने नंगे घुमाया रोड पर, और आज तक आपका प्रधानमंत्री गृह मंत्री को जवाब नहीं दे सका, देश के सामने कोई पिक्चर नहीं ला सका। वो अपनी बात क्या रखेंगे, वो बात तब रखेंगे जब इंटरनेशनल बरादरी का दबाव आएगा। आज उनको लग रहा है कि हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम फिलिस्तीन के साथ खड़े होंगे, इसलिए वो पहले इजराइल के साथ खड़े हुए। और अभी भी उनकी प्राइम मिनिस्टर की खुद की बात उनके मिनिस्टर गोयल नहीं सुन रहे। तो ये बातें करना ठीक नहीं है। दुनिया के किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हमास के साथ हम खड़े हैं। किसी ने कहा क्या? हर आदमी ने कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने पहले दिन कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। जब उनको इंटरनेशनल दबाव आया तब उन्होंने कहा कि हम जो है फिलिस्तीन की बात रखेंगे क्योंकि हमारे लोगों ने किया है। क्योंकि स्वयं अटल जी का भाषण आप सुनिए, उनकी जो पॉलिसी थी फॉरेन की, बेहतर पॉलिसी थी, उन्होंने उस रिश्ते को बनाया और उन्होंने उसके साथ रखा। नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस जब हिंदुस्तान में हुआ तो आपने देखा कि यासर अरफात खुद हिंदुस्तान आए थे और उस जमाने में इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फिलिस्तीन के इशूज को रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर से रखा, क्योंकि ये इशू गल्फ के साथ भी आगे जाके जुड़ने वाला है। इसलिए इस तरह की बात करना, रोज स्टैंड बदलना, और शरद पवार को छोटी मोटी चीज नहीं है कि उनको उनकी बात नहीं सुनी गई है, उनकी बात नहीं हुई। शरद पवार ने जो अपना व्यू रखा वो 100% करेक्ट व्यू है। आप उनकी बेटी के साथ बदतमीजी की बात करेंगे, आप दूसरे तरह की बात करेंगे, ये राजनीति सिर्फ बीजेपी कर सकती है क्योंकि वो किसी चीज में बिलीव नहीं करती। अभी जिस चीफ मिनिस्टर की इन्होंने बात किया असम के, आप उसका 15 दिन पहले का स्टेटमेंट देखो। वो चीफ मिनिस्टर कहता है कि इस मुल्क में मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। दूसरा चीफ मिनिस्टर इनका पुष्कर सिंह धामी, वो कहता है कि हमारे इस जिले में, मीन्स हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में कोई मुसलमान आना नहीं चाहिए। तो ऐसी बात करने वाले टेररिज्म में क्या बात करेंगे? इससे बड़ा टेररिज्म क्या होगा कि मुल्क की बेटियां नंगी घुमाई जा रही थी और देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों शांत थे। तो ये क्या बात करेंगे टेररिज्म पर, और कौन सी पॉलिसी ले आ रहे हैं जिसके तहत ये बात हो रही है? तो इसके लिए इंटरनेशनल बिरादरी का दबाव था, इसलिए वो बदल गए। मुझे खुशी है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और आगे भी चाहिए भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि वो स्वयं जो है फिलिस्तीन के साथ खड़े रहें, और जो सच है पूरी दुनिया देख रही है, उस सच के निर्णय के साथ फिलिस्तीन को मदद करनी चाहिए। ये भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रहा है कि फिलिस्तीन के साथ भारत के तमाम प्रधानमंत्री हमेशा उनके साथ खड़े रहे और उनको मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी जो अटैक हुआ, उससे पहले जो अटैक हुआ, वो अटैक से आप इनकार नहीं कर सकते। आप लाश बच्चों की, मासूमों के अस्पतालों में आप उनको मार रहे हैं जाकर। ये पहली बार हुआ। जो यूएन का हमारा लॉ है जिस पर पूरा देश, पूरी दुनिया चलेगी, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये चीजें, इस तरह के लोगों के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी ताकत है और उसकी बात सुनी जाएगी। तो भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए
कि फिलिस्तीनियों के हक में खड़े हों और उनका जो जमीन है उसे वापस कराएं और जो वार है उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए था। लेकिन आप पिछले एक हफ्ते में भारत के प्रधानमंत्री का, उनके मिनिस्टर पीयूष गोयल का, उनके मुख्यमंत्री का बयान देखिए, उससे आपको लगेगा कि वो किसके साथ खड़े। इंद्रपाल सिंह साहब, इंद्रपाल सिंह साहब, क्या आपको लग रहा है कि अब पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज हो रहे हैं? आज इंडिया ने क्लियर कट, भारत ने क्लियर कट इजराइल के साथ खड़े होकर कहा कि टेरर अटैक इज डिनाउंस्ड एंड राइट टू रिटेलिएट इज एब्सोल्यूट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था। और अभी ये क्लियर कट बात है कि हमास अलग है, पैलेस्टाइन अलग है। जैसे दारूवाला साहब बोल रहे हैं कि हम हमास के बात कर रहे हैं, हम पैलेस्टाइन की बात नहीं कर रहे हैं। हमास का टेरर अटैक, तो चेंजिंग सिनेरियो इंटरनेशनल रिलेशंस, तो क्या जिस प्रकार से आज के तारीख में, जैसे निजामुद्दीन इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि मोदी साहब खड़े हैं इजराइल के साथ, ये थोड़ा पॉलिसीज में चेंज है, सुधार है, क्या इंटरनेशनल रिलेशंस अब एक दौर गुजर रहा है जो इंडिया एडॉप्ट करना चाहिए, भारत को एडॉप्ट करना चाहिए? इंद्रपाल सिंह साहब, पहले से मोदी साहब का जो इंटरनेशनल पकड़ है वो एक अलग पकड़ रही है। तो कभी भी उन्होंने, आप भी ये चाहेंगे, सब ये चाहेंगे कि जो टेररिस्ट अटैक है उसका कंडेम कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, तो टेररिस्ट अटैक का कंडेम तो करना ही चाहिए सबने। इसमें फिर धर्म कहाँ से आता है? आप मुस्लिम धर्म ले आएंगे या मुसलमानों को आप भड़काएंगे या देश में किसी प्रकार का वातावरण खराब करेंगे, दूषित करेंगे? क्या ये वक्त है स्टेटमेंट करने का? और जैसे दारूवाला साहब ने कहा, जब इस्राइल के अंदर विपक्ष और सत्ता दोनों मिलकर सामना कर रही है तो हमें भी वही करना चाहिए। ये जो देश के हालात हैं, जो विश्व के हालात हैं, विश्व में हमको विश्व के साथ बह के चलना चाहिए। और टेररिज्म की तो बिल्कुल खिलाफ जो कड़ा से कड़ा कदम हो वो उठाने के लिए विपक्ष ने मोदी जी का साथ देना चाहिए। अगर विपक्ष मोदी जी का साथ नहीं दे रहा है और मोदी जी अगर जो निर्णय इस समय ले रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ले रहे हैं। तो आपका कहना है इंद्रपाल सिंह साहब की जवाबदारी थी कि वो सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाना चाहिए था। क्या प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को बुलाया? क्या प्रधानमंत्री की किसी चीज को विपक्षी नेताओं ने नकार दिया? क्या आपने उनको बुलाया ही नहीं, आपने डिस्कस नहीं किया। आप जाइए, आप पॉलिसी देखिए कि अटल जी जब इस देश में लीडर अपोजिशन थे तो यूएन के विषय में कांग्रेस ने अपने लीडर को नहीं भेजा नरसिम्हा राव की सरकार में। यूएन में बात करने के लिए अपोजिशन के लीडर श्री अटल जी को भेजा था। इसलिए तारीख पढ़िए सर। आप जब भारत का प्रधानमंत्री या भारत सरकार आपको बुलाएगी नहीं और खुद से कोई डिसीजन लेगी तो कैसे आप कह सकते हैं कि विपक्ष हमसे हमारे साथ नहीं खड़ा है? आपने विपक्ष को बुलाया क्या? आपने विपक्षी नेताओं से बात की क्या? या आपका कोई मंत्री बात किया क्या? आपके मंत्री अलग अलग जवाब दे रहे हैं सर। प्रधानमंत्री की बात स्वयं नहीं सुन रहे पीयूष गोयल जी, प्रधानमंत्री की बात दूसरे आपके नेता नहीं सुन रहे हैं, तो आप विपक्ष को कैसे कह सकते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है? इंद्रपाल सर, आप देखें कि मैं राजनीति आपके साथ 20 साल पत्रकारिता कर चुका हूं। मैं यही देख रहा हूं कि कम से कम सरकार किसी को बात करने बुलाए तो सही। तो अभी आपने आपके महाराष्ट्र में आपने देखा, अजीत दादा ने एक मीटिंग कॉल किया तो उन्होंने सारे लोगों को बुलाया। जब आप किसी को बुलाएंगे नहीं तो विलय कैसे आप कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को राजनीति नहीं करना चाहिए। अपोजिशन तब राजनीति करती जब आपने बुलाया होता और अपोजिशन आपके साथ नहीं खड़ी होती, क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिसी है। सारा अपोजिशन भारत सरकार और प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होगा। अगर कोई निर्णय उनको विदेश के बारे में लेना है तो देश के बारे राजनीतिक दलों से आपको बात करनी होगी, क्योंकि ये 130 करोड़ की बात रिपीट कर रहे सर। No, he is repeating the same thing. I'll tell you, Darwala sahab, you can respond. आप थोड़ा सा इसमें you can respond to what Nizamuddin Ibrahim साहब said. At the same time, we will move a little ahead. इसके बाद की क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज also 511 रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स अक्रॉस द नेशन खोल दिया है। उन्होंने कहा कि करीबन 16 राज्यों में
विदेश के राज्यों में इंटरनेशनल हमारे डिमांड स्किल्ड लेबर का बहुत जबरदस्त डिमांड है, और 511 रूरल स्किल डेवलपमेंट विश्वकर्मा योजना के तहत, और प्रमोद महाजन, तो इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या अनलीश किया है डेवलपमेंट, जो 9 साल बेमिसाल, दारूवाला साहब 9 साल बेमिसाल जो बोल रहे हैं, हर चीज में 9 साल बेमिसाल है, इंटरनेशनल रिलेशंस में बेमिसाल है, लोकल इकोनॉमी बेनिफिट 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गया, फिर हर चीज हर घर नल से जल, शौचालय, यानी हर चीज में 9 साल बेमिसाल है। दारूवाला साहब, if you want you can first retort to. Yeah, first I'll respond to Nizamuddin sir. Before moving to 511 incubation centers से मैं एक उनसे जवाब लेना चाहता हूँ बिफोर ये टॉपिक को छोड़ने के पहले। निजामुद्दीन सर, जो हमास ने अटैक इजराइल पे किया, आप उसको आपकी पार्टी की तरफ से आपका ऑफिशियल स्टैंड को समझते हुए आप उसको डिनाउंस यानी आप उसकी निंदा करते हैं या नहीं करते हैं, उतना बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने निंदा किया। सबसे पहले जब भारत के प्रधानमंत्री नहीं जागे थे तो कांग्रेस ने निंदा किया, और उसके बाद फलस्तीन के इश्यूज को सबसे पहले राहुल गांधी लेकर आए, और ये हम हमेशा से ये कहते रहे, हमने कभी भी भारत सरकार की किसी पॉलिसी को आप डिनाउंस करते या नहीं करते, उतना बोलो सर, घुमा घुमा के बात मत करो। हमने ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के जितने कंट्रीज थे किसी ने हमास को जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन आपके जो लीडर्स हैं वही लोग आपस में बटे हैं, कांग्रेस नहीं बटी है। स्टैंड में जानना चाहता हूँ निजामुद्दीन सर, छाती ठोक के डंके के चोट से बोलो, कांग्रेस इसकी निंदा करती है या नहीं? सर, निंदा कर दिया, करती नहीं है, कर दिया उसी दिन। आपने फिर देखा नहीं इसका मतलब, आपने सुना नहीं इसका मतलब। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। सो आई एम वेरी हैप्पी प्रदीप सर, आपके चैनल पे फिर से एक बार कांग्रेस ने हमास को डिनाउंस किया, और जो फर्स्ट अटैक उन्होंने इजराइल पे किया, इसकी ये लोग निंदा करते। थैंक यू। तो कमिंग टू 511 इंक्यूबेशन सेंटर्स, महाराष्ट्र के अंदर जो विश्वकर्मा योजना का माननीय पंतप्रधान जी ने जो उसका अनावरण आज किया है, सर मैं इसको कहना चाहता हूँ, ये 9 साल बेमिसाल का ये जो आखिरी बोलते हैं ना 6 जो विनिंग मैच है, इंडिया का पोटेंशियल, यहाँ पे जो रेडी वाला, रास्ते पे काम करने टहले वाला का पोटेंशियल माननीय पंतप्रधान जी ने उसको वो पोटेंशियल को टैप करने का ये योजना बनाया है। जो बोलते हैं ना यहाँ पर चाय वाला, जो बोलते हैं ना एक गुजराती का जो एक विचारधारा होती है, ये यहाँ पे जो नौकरी मांगने वाला है उसको नौकरी देने वाला बनाने का पोटेंशियल मोदी जी ने यहाँ पर इसको देखा है, और आने वाले इलेक्शन के पहले जो मांगे उसको कर्ज विदाउट गारंटी, और 511 की आज जो आप बात देख रहे हो, मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये 5000 तक के जो अनस्किल्ड लोग हैं इसको स्किल के दायरे में लाके ये जो इंडिया का पोटेंशियल है इसको एक्सप्लॉइट करके इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बनाने हम जा रहे हैं। जो चाइना का वर्चस्व था वो तो ऑलरेडी 50% हमने खत्म कर दिया, और बचे हुआ 50% आने वाले 1 साल में प्रदीप जी आप देखेंगे विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये जो है इसको विनिंग स्ट्रोक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो राइन साहब, क्या इतना पैसा नहीं है कि ये मनरेगा का पैसा दे सके जहां गरीबों ने काम किया है? जितनी भी पॉलिसीज प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्षों में लाया, एक भी पॉलिसी कोई अब तक सक्सेस नहीं है। हमारी इकोनॉमी का हाल ये है कि आज हमारी तुलना बांग्लादेश से हो रही है। हम प्रधानमंत्री जी तो झूठ बोलते ही थे, अभी उनके यहाँ जितने उनके भक्त हैं वो भी झूठ बोलने लगे हैं। अरे बाकी की योजनाओं की हालत आप देख लीजिए, एक रोड डेवलपमेंट को छोड़कर गडकरी की किसी भी योजना के आपके पास ना तो मास्टर प्लान है, ना कहीं वो कोई योजना आज तक सक्सेस हुई है। पैसा देने का हाल यह है कि जितनी सब्सिडीज थी, देश की सारी सब्सिडीज को भी उन्होंने खत्म किया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं दे पा रहे हैं। जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि विश्वकर्मा योजना बहुत अच्छी लाते हैं, क्योंकि जो झूठे होते हैं ना वो बहुत अच्छे से फ्रेमिंग करते हैं, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो वो बातें समझ में आती है कि आप पैसा कहां से लाएंगे। बैंकों की हालत आपने देख लिया है कि इतनी बुरे हाल में कभी इस देश में बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी। पूरी की पूरी रिजर्व बैंक के पैसे को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, लूट चुके हैं। उसके बाद जो कर्ज था
70 लाख करोड़ का आज 1,70,000 करोड़ से भी ऊपर निकल गया। अब आपको दुनिया में कटोरा लेके भीख मांगने वाली नौबत आ गई है। आज मुल्क में हर आदमी इतना गरीब हो गया है कि वो पैसा चुका नहीं सकता। पूरी इकोनॉमी आपने छोटे छोटे घरों की तोड़कर खत्म कर दी। अभी हमारे भाई इंद्रपाल जी ने कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ। आज नोटबंदी की हालत आप देख रहे हो कि जो आदमी अपने 7 साल 9 साल के करियर में 2000 की नोट नहीं चला सका, वो आदमी क्या पॉलिसीज पर काम करेगा और क्या देश की इकोनॉमी। भाषण कर बेहतरीन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, लेकिन आप फील्ड में जब जो पॉलिसीज आई हैं या जो जो डेवलपमेंट के काम वो लाए हैं, उन डेवलपमेंट को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना % उनका डेवलपमेंट हुआ है। आज एजुकेशन की हालत यह है, महाराष्ट्र की बात करता हूं कि अभी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख रहे हैं। आपने इससे पहले सेना में अभी अग्निवीर की हालत आपने देखा कि एक देश में एक आदमी शहीद होता था अगर बॉर्डर पे, पूरी थी और उस पर कार्रवाई होती थी और वहां तिरंगे में उसको ले जाया जाता था। आज हालत यह है कि आज उसे तिरंगा भी नसीब नहीं होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जाएगा और उसके बाद भी उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये हालत है, इसलिए ये बात उनको करनी चाहिए जो सच का आईना देख सके या लोगों को दिखा सके। झूठ का वादा, प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे हर साल, 15 लाख सबको खाते में ला रहे थे। सब बातों से मुकरते जाने का और चुनाव आने पर कोई हिंदू मुस्लिम एजेंडा ले आने का और लोगों का वोट पोलराइजेशन करने का, इसके अलावा देश का विकास आप दिखाओ। एक रोड को छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर घंटे यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, हर घंटे IIM खोल रहे हैं। आप जरा लिस्ट देख लीजिए कितने खुले और कितने बने। अस्पतालों की हालत आप देख ही रहे हैं। आज कारपोरेशन के अस्पताल में बैठने को जगह नहीं है और पैसा तो छोड़ दीजिए। नागपुर की हालत आपने देखा कि सैकड़ों बच्चे मर गए, स्टेट को पता ही नहीं है। तो क्या हम बात करेंगे पॉलिसीज पर और क्या बात करेंगे डेवलपमेंट पे, जिससे पिछली योजनाओं का जो हाल हुआ वही हाल इस योजना का भी होगा। इंद्रपाल सिंह जी, अजित पवार जी ट्रिपल इंजन, अभी राइन साहब ने महाराष्ट्र का जिक्र किया। अजित पवार जी एकनाथ शिंदे जी, इन्हें सोने का नाम ही नहीं पूरे दिन। देवेंद्र फडणवीस जी, ये ट्रिपल इंजन, अजित पवार जी का कहना है कि हमने पूरे महाराष्ट्र को एक डेवलपमेंट पथ पर ले जाना है, हमें लोगों के काम करना है, 24 घंटा लोगों के काम करना है। अजित पवार जी का स्टेटमेंट है, आपका नेता का स्टेटमेंट है। तो डेवलपमेंट महाराष्ट्र कैसे देखते हो आप? तीनों ट्रिपल इंजन जिस प्रकार से जा रहा है और ऊपर से सपोर्टिव और एक बड़ा इंजन मोदी साहब के। इंद्रपाल सिंह जी, हाउ डू यू सी डेवलपमेंट? अजित पवार जी 24 घंटा 24/7 काम करने वाले, एकनाथ शिंदे 27/4, देव फडणवीस, कैसे देख रहे हो डेवलपमेंट को इंद्रपाल सिंह जी महाराष्ट्र का? हमने डेवलपमेंट देखा। मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा सा विषय भी भूल गए, क्योंकि जो विश्वकर्मा योजना है ये यूपीए गवर्नमेंट में 9 साल में ये लोगों ने 6 लाख जॉब दिए थे, जबकि हमारा ऐसा बोलना है कि हम 9 लाख ये जॉब देंगे और 3 लाख रुपया लोन भी देंगे, डिजिटल मार्केटिंग भी करेंगे। ये हर स्टेट में जो आर्टिशियन है, क्राफ्टमैन है, कारपेंटर है, लोहार है, गोल्ड स्मिथ है, ये छोटे छोटे लोग हैं जो MSME में भी होते हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्री में भी लोग होते हैं। लेकिन इनको एक लोन देना, 3 लाख तक का लोन देना, इनकी डिजिटल मार्केटिंग करना, इनको प्रमोट करना, और इनको यहाँ तक की सुविधा दी है कि अगर ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में होता है तो इनको 1 रुपया दिया जाएगा, और इस तरह से इनको 100 ट्रांजैक्शन के ऊपर भी इनको पैसा दिया जाएगा। तो ये सब जो है, ये एक अच्छी योजना का स्वागत मेरे मित्र ने करना चाहिए, न कि ये बोलना चाहिए कि ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। ये बोलना चाहिए कि ये एक अच्छी योजना है, इससे मामूली लोगों को फायदा होगा। और जितने छोटे छोटे लोग, भारत में ज़्यादातर लोग जो है वो गरीब लोग हैं, अंडर पॉवर्टी लाइन है या मीडियम क्लास के लोग हैं। आप महाराष्ट्र में भी देख लो, सुतार लोग बहुत हैं, लोहार लोग बहुत हैं, गोल्ड स्मिथ बहुत हैं। तो इन सबको विश्वकर्मा योजना का फायदा होगा, बेनिफिट होगा, और ये योजना का लाभ सब लोग उठाएंगे। और ये ट्रिपल इंजन है, अजीत दादा ने जो एक निर्णय लिया था मोदी साहब के साथ में जाने का, तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास था। क्योंकि और दूसरा, इस देश में मोदी साहब के अलावा
अजीत दादा पवार साहब ने अपने पहले भाषण में कहा था कि मोदी साहब के अलावा 2024 में कोई पर्याय भी नहीं है और कोई ऐसा नेता भी नहीं है कि जो 2024 में जिनको प्रोजेक्ट किया जाए कि जो देश के लिए जिसके पास कोई योजना हो या देश के पास कोई अपना कैनवास पेंट कर सके और या देश के बारे में कोई कुछ बोल सके। तो अजीत पवार साहब के जो विचार है कि 24 घंटा, जैसे आपने कहा, आपके चैनल का मैं आभारी हूँ कि तीनों नेता जो हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब हो गए, बाद में एकनाथ शिंदे साहब हो गए, देखिए ये इतना काम करते हैं कि सारे मीडिया में इनके कामों को दिखाया जा रहा है। आपको रोज काम दिखाए जा रहे हैं, आपको रोज विकास दिखाया जा रहा है, आपको रोज प्रोग्रेस दिखाया जा रहा है, रोज आपको डेवलपमेंट उन्नति दिखाई जा रही है। उसके बाद में भी विरोध करने के लिए ये कहना कि काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, सिर्फ विरोध करने के लिए बोलना, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे नेताओं के अच्छे गुण बोलना, वक्त के ऊपर हमें बोलना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। और मैं तो देखता हूँ कि महाराष्ट्र में जब से अजीत दादा ने ये गवर्नमेंट ज्वाइन किया है, 100 दिन पूरे किए और 100 दिन में उन्होंने, मुझे लगता है कि 100 काम किए होंगे जो कि आपने रोज मीडिया में दिखाए। और वो जब भी किसी मीटिंग में बैठते हैं, जब भी ये तीनों नेता बैठते हैं, एकनाथ शिंदे जी बैठते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी बैठते हैं, अजित पवार जी बैठते हैं, तो अजित पवार साहब के हाथ में एक पेपर देखेंगे आप कभी भी, तो कभी भी वो वहीं से अपना साइन करना, रिमार्क करना। तो इतना काम करना, इतना मेहनत करना, उसके बाद में ये बोलना कि उन्नति नहीं हो रही है और प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो ये विरोध करने के लिए बोलना ठीक नहीं है। मैं ये चाहूँगा। दारूवाला साहब, राहुल गांधी जी ने हाल ही में परिवारवाद पे एकदम खुल के बोला कि परिवारवाद पे आप मुझे बोल रहे हो, आप मुझे जवाब दो, जय शाह क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह का लड़का क्या कर रहा है, अनुराग ठाकुर क्या कर रहा है। राहुल गांधी बोलना शुरू कर दिया। एक तो ये बोल दिया परिवारवाद के बारे में, करप्शन के बारे में बोले कि अडानी जी के जो कोयला जब आता है इंडोनेशिया में, मुंद्रा में लैंड होता है तो प्लस 12,000 करोड़ हो जाता है, 12,000 करोड़ प्लस हो जाता है। तो राहुल गांधी जी आपको प्रश्न पूछ रहे हैं करप्शन के बारे में, परिवारवाद के बारे में, तुष्टि के, तो हाउ डू यू सी दैट, हाउ राहुल गांधी इज चार्ज कि परिवारवाद आपको जवाब देना पड़ेगा। दारूवाला साहब। Correct, Pradeep ji, answering to your question directly about परिवारवाद, अनुराग ठाकुर जी is a first time politician into the family, वो कोई वंशवाद से नहीं आते। Coming back to what he said about अडानी का कोल इंडिया में आके 12,000 करोड़ का होता है, it was not his that tall claim. Coal is the business where the least margin, उसके ऊपर जो लीस्ट मार्जिन के ऊपर काम किया जाता है, उसके ऊपर अडानी जी कोल बाहर अफ्रीकन कंट्री से लाके इंडिया के अंदर उसको पावर जनरेशन के अंदर यूज कर रहे। ये पावर जनरेशन जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सर, ये कॉन्ट्रैक्ट आप इनको अगर पूछेंगे निजामुद्दीन जी को, ये अडानी जी की कंपनी कुछ कल 9 साल में नहीं खुली सर, ये यहाँ पे 25 साल से जब इनके साथ काम चल रहा था तो अडानी जी एकदम स्वच्छ थे, काम सब ठीक ठाक चला था, इसके बारे में पार्लियामेंट में कभी सवाल नहीं पूछा। अभी 8-9 साल में इन्होंने अडानी जी और अंबानी जी से को बहुत सारी तकलीफ हो रही है सर। क्यों हो रही है ये परमेश्वर को ही जानते हैं, ये शायद निजामुद्दीन बता सकेंगे। क्या एक आदमी 9 साल में इतना भ्रष्ट हो गया? तो ये अपने आप को कोई आरोप को अपने आंख पे ये चिपकाने की कोशिश नहीं करते, ये उठा के मोदी जी को ड्रैग करने की कोशिश करते, मगर ईच टाइम हर वक्त मोदी जी, एक सेकेंड मैं बीच में बात नहीं किया सर, और जब ये कोई भी घोटाले को लेकर आते, जैसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ये लोग लेकर आए, राहुल गांधी जी उसमें से क्लीन चिट अडानी जी को मिला। अभी ये जो इन्हें 12,000 करोड़ का जो आरोप, जो ठपका हमारे पे लगाया है सर, अगर ये पैसा ऑफ शोर्स के अंदर गया है तो ये सब ऑफिशियल थ्रू बैंक ट्रांसफर्स है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो इन्होंने ना के मीडिया पे ना पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जाके अपने इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर कंप्लेंट दर्ज करना चाहिए सर। 12 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, वो ये नहीं करते, ये सिर्फ टीवी पे कुछ तो एक चुटकुला छोड़ के चले जाते।
पर इसका जो एवरलास्टिंग इफेक्ट है ये सोचते नहीं कि शेयर इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या होगा, ये देश के तरक्की उन्नति के बारे में क्या होगा। सिर्फ इतने नादानी से इनके नेता इतने नादानी से बात करते हैं सर, इनकी हर चीज इनके ऊपर बूमरैंग हुई है। हमारे मोदी जी के ऊपर इन्होंने जितने आरोप लगाए वो उनको एक भी आरोप के अंदर ये लोग कन्विक्ट नहीं कर सके। और सर इतना तो छोड़ो, गोधरा कांड में भी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर पूछे और सवाल पूछना है पूछो। सर ये जो कांग्रेस है ये देश को इन्होंने फ्रजाइल 5 में ले जाके रखा। इन्होंने जो पहले 5 सवाल पूछे तो उसका तो जवाब लिए नहीं, भाग गए मेरे से। सर जीडीपी आज 8.6 पर है, ये शायद इन्हें दिखता नहीं है, कोई बात नहीं। जो फोर्ब्स लिस्ट है इन्हें ये मानते शायद नहीं है। फोर्ब्स लिस्ट के अंदर सर वी आर इन द टॉप परफॉर्मिंग नेशंस इन द वर्ल्ड, ये मानते नहीं है, कोई बात नहीं। उज्ज्वला गैस योजना में 10 करोड़ महिलाओं को धुएं से चूल्हे से मुक्ति मिली, वो ये मानते ही नहीं है। सर इनके ड्राइवर को पूछिए, निजामुद्दीन साहब के ड्राइवर को पूछिए सर, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में 1 सेकेंड 3.5 लाख लोगों को घर मिला, ये मानते ही नहीं है सर। आज 81 करोड़ लोगों को आज भी कोविड के वक्त से आज भी उनको महीने का राशन मुफ्त दिया जा रहा है, ये मानते ही नहीं है। हमारी हर बातें को ये झुटलाना चाहते सर। जातिवाद और यहाँ पे झगड़ा लगाने के अलावा इलेक्शन पास में आए, मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ सर डेवलपमेंट की बात करो। कर्नाटका में इनका तो फेस चला गया, कुछ बता नहीं सकते तो आज वो लोग सीएम चेंज करने को आ गए। सर इनको तो 5 महीने भी नहीं हो गए कर्नाटका में। दिल्ली के अंदर यहाँ पे मुफ्त लाइट देने की बात करी, वहां पर भी सब चेहरे पे गिर गए। पंजाब के अंदर क्या हाल करके बैठा है सर, 3 स्टेट है। और राजस्थान में तो राहुल गांधी खुद बोले कि हम ये इलेक्शन हार गए। सर मेरे को लगता है इनकी क्रेडेंशियल्स इनके ऊपर छोड़ दो। कांग्रेस ये खुद डूबती नैया है, आप भी सर छोड़ दो, आ जाओ यहाँ पर। मुसलमानों का अगर सही में कल्याण करना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी इज दी ओनली पार्टी जो ये देश को उन्नति और तरक्की के राह में लेके जाएंगी। नमस्कार। सुनिए, दारूवाला साहब ने आपको कुछ नसीहत दी है कि आप निजामुद्दीन राइन साहब बीजेपी ज्वाइन कीजिए, यहाँ इस्लाम देंगे। मैं दारूवाला साहब से पूछता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने 1 महीना 1.5 महीना पहले अजीत दादा की सरकार बनने से पहले उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना शायद वहां मध्य प्रदेश में। जिस अजीत दादा की बात कर रहे हैं 70,000 करोड़ का, ये निजामुद्दीन राइन या कांग्रेस के नेता ने आरोप नहीं लगाया, ये आरोप भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं लगाया देश के सारे चैनलों पर। करप्शन में अगर दादा डूबेगा तो दादा को क्यों लाए? लेट मी आंसर प्लीज। हाँ बोलिए। निजामुद्दीन साहब ये जो अजीत दादा पवार के मंत्रिमंडल में थे, इनके साथ काम कर रहे थे, जब हमने आरोप लगाया तो सर ये उसका समर्थन नहीं करते हुए ये उसके विरोध में मेरे सामने टीवी में थे। आज ये खुद बोल रहे उनको जेल में डालो, 70,000 करोड़ का भ्रष्ट हुआ है। सर ये आदमी एक रात में स्टैंड चेंज कर सकता है। सर इसे प्लीज स्क्रीन से हटा के घर भेज दीजिए सर। आपको याद दिला रहा हूं कि आप जो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का भाषण सुनो। आप पहले जाके आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनो कि उन्होंने क्या कहा था। और क्लीन चिट मिली है सर। निजामुद्दीन सर आप तो आपकी फायदे की बात देखते ही नहीं। हमारे फायदे की आप छोड़ दीजिए, हम देश के फायदे की बात देख रहे हैं। हमको दूसरे की नहीं पड़ी है, हमको इस देश के फायदे की बात पड़ी है कि देश लाइट फ्री में कैसे देंगे, जरा बताइए फायदा कैसा होगा। लाइट पानी बिजली फ्री देके फायदा कैसा होगा? फंडिंग कहाँ से ला रहे, जरा बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। देश हम चला रहे, हमको भी सिखाइए। व्यवस्था है, अगर कोई सरकार बिजली फ्री दे रही है तो व्यवस्था नहीं है। आप राशन फ्री दे तो व्यवस्था है वो। सर बनाना रिपब्लिक ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी सर, इनको परमेश्वर सहबुद्धि दे सर। ये देश को बनाना रिपब्लिक बनाने जा रहे सर। आज सच का आईना दिखा रहा है, एक ही भविष्य इस देश का जो सच का आईना दिखा रहा है। वो कभी झूठी बात नहीं करता, वो जो कहता है ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ कहता है। आपका प्रधानमंत्री रात में कुछ बात करता है, सवेरे दूसरी बात करता है, और हमेशा झूठ के अलावा अडानी के ऊपर बात करिए सर। अडानी के ऊपर बात करिए। प्रधानमंत्री के सारे एनालिसिस करने भाषण का आप देखिए कि कितना उन्होंने इस देश के लिए सच बोला है। 9 साल के सर अडानी के ऊपर बात करिए, टॉपिक से हटिए मत सर। अडानी को बात कर लीजिए। अडानी को 9 साल आपकी तो लायकी नहीं हमारे पंतप्रधान के बारे में बात करने की। वो पैसा प्रधानमंत्री का स्वयं का पैसा है, करप्शन का पैसा है। उससे पहले आप बताओ कि कांग्रेस ने अडानी को कौन सी मदद किया है? एक जगह हमको आप दिखाओ कि इसमें अडानी के साथ कांग्रेस ने पार्टनरशिप की। मैं आपको जितने प्रोजेक्ट हुए हैं, श्रीलंका में भारत के प्रधानमंत्री ने फोन करके पिछले प्रोजेक्ट के लिए कहा
प्रधानमंत्री जहां जाते हैं उनको लेके उस देश के प्रधानमंत्री से सिफारिश करते हैं कि अडानी को दे दीजिए। आज जिस कोयले की आप बात कर रहे हैं, इस कोयले में बड़े पैमाने पर हाथ काला हुआ है और इसमें आज नहीं तो कल भारत के प्रधानमंत्री को भी कोलगेट स्कैंडल आपके टाइम में हुआ। बाप रे, ये आदमी सर शायद आपके टाइम में 9 साल में आपने देश को इस लायक नहीं छोड़ा कि देश कहीं मुंह दिखाने लायक बचे। आपने तो इस देश को इतनी बर्बादी के कगार पे लाया है कि जब व्हाइट पेपर आएगा तो आपको समझेगा कि हमने देश में क्या खोया और क्या पाया। आज आपकी हालत ऐसी हो गई। तो I'll allow दारूवाला साहब to come. इंद्रपाल सिंह साहब, आप कैसे देखते हो शरद पवार साहब, आपके जो पहले बहुत मानते थे जब एनसीपी एक साथ थे, पवार साहब ने हमेशा अडानी जी को करीब से देखा है। वो जब जेपीसी के डिमांड राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में किया था कि अडानी पर जेपीसी होना चाहिए, तो शायद शरद पवार जी, ममता बनर्जी और बहुत सारे नेता ने इंडिया अलायंस के जो घटक दल है वो सपोर्ट नहीं किया था, वो साथ में नहीं आए थे। तो क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को इस प्रकार से बोलना ये ठीक रहेगा? जैसे पवार साहब ने बोला कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हैं, हम डेवलपमेंट के साथ हैं, भले हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, भले कांग्रेस के साथ है, तो हाउ डू यू सी चेंजिंग? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को इस प्रकार से बोलना चाहिए या करप्शन है तो बोलना चाहिए? कैसे देखते हो इंद्रपाल साहब? बिल्कुल, ये आपने प्रदीप जी बहुत अच्छा बोला। आपके सवाल में जवाब है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को कभी भी अटैक नहीं करना चाहिए, अटैक नहीं करना, क्योंकि वो आपके कंट्री का डेवलपमेंट करता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाता है। और अभी जैसे आप बता रहे हैं, जो ये अभी का जो ये मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था 2023 में, 24 जनवरी को मैटर गया था। डीआरआई ने मैटर डाला था ये अडानी में, और डीआरआई को मैटर विड्रॉ करना पड़ा और उसका पिटीशन डिसमिस हुआ, क्योंकि मैटर में कोई सब्सटेंस नहीं था और कोई इनवॉइसिंग भी नहीं था, कुछ भी और इनवॉइसिंग नहीं था। सिर्फ एक्विजिशन करना कि 12,000 करोड़ 20,000 करोड़, ये बोलने के लिए बहुत आसान है, ये आंकड़े देना बहुत आसान है। कोर्ट में ये आंकड़े खड़े होते नहीं है और कोर्ट में ये पिटीशन सर्वाइव करते नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सब्सटेंस होता नहीं है। तो पवार साहब का भी ये विचार रहा है हर वक्त कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड में रैंकिंग में आता है, कहीं ना कहीं आपकी कंट्री का नाम ऊंचा करता है और आपके डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट करता है, आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता है, उसके ऊपर एक्विजिशन होना एक सही बात नहीं है। और ये अपोजिशन को भी विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। और अडानी जी के ऊपर आज तक कोई भी आरोप जो भी अपोजिशन ने लगाए हैं वो कहीं भी खड़े नहीं हुए और कहीं भी सत्य साबित नहीं हुए। इसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर समय विरोध करती है और पवार साहब ने भी विरोध किया है, ममता बनर्जी जी ने भी विरोध किया, दीदी ने भी विरोध किया है। तो आपका सवाल में जवाब था नामियार जी, और मैं चाहूंगा कि निजामुद्दीन जी, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो, ये बोलना कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, हमें ये बोलना चाहिए कि वो देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं और वो देश का काम कर रहे हैं, देश को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं, देश का नाम वर्ल्ड में रोशन कर रहे हैं। आज अंबानी जी का और अडानी जी का नाम पूरे विश्व में है। तो कोई भी आरोप लगाने के पहले हमें उनके ऊपर सोचना आवश्यक है। बिल्कुल बेबुनियाद। मैं I just दारूवाला साहब, before coming to you, we'll allow Nizamuddin साहब to just retort on what इंद्रपाल सिंह कैसे आप देखते हो निजामुद्दीन साहब? आप मुझे बताइए कि अगर वो बहुत साफ है, बहुत सुथरे हैं, तो पार्लियामेंट की डिबेट में प्रधानमंत्री क्यों भागते हैं? अडानी पर क्यों नहीं बहस करते प्रधानमंत्री जी? क्योंकि जो विदेश में पैसा 20,000 करोड़ पहले गया, वो पैसा किसका है, यही तो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से लोग। क्यों नहीं जवाब देते को पैसा किसका है और कहां से आया? क्यों बेनामी जो कंपनियां हैं उन पर क्यों नहीं बात करते सिर पर कहीं की? ये तो बात करना, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश के उद्योगपति का बड़ा नाम हो, लेकिन भ्रष्ट उद्योगपति के नाम से आपको क्या मिलने वाला? जब देश को कंगाल करने के लिए, गरीबों का 50,000 का लोन माफ करने के लिए आपसे जेल देखते हैं, पैसा नहीं समझा देता हूँ, ये नादान लग रहे सर। अली दारूवाला साहब, दूसरा राहुल गांधी का चार्ज था कि 25,000 करोड़ या 25,000 करोड़ बैंक ने राइट ऑफ किया है। बोले कि इतना बड़ा राइट ऑफ, मैं वही कह रहा हूँ ना, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार बड़े इंडस्ट्रीज का पैसा इन्होंने माफ किया, उनसे क्यों नहीं वसीला?
देश के डेवलपमेंट में वही पैसा काम आता ना। लेकिन गरीबों का अगर 1000 रुपया बाकी है तो पुलिस उसे घसीट के ले जाती है, उसे बंद करती है, और इनका हजारों करोड़ रुपया माफ होता है, तो उसके पीछे का क्या राज है? वो पैसा कौन कहाँ जा रहा है? आज वो हमको समझाने की बात कर रहे हैं, वो सब बता देना कि आज बीजेपी का जो करप्शन बीजेपी के थ्रू हो रहा है, जो पैसे आ रहे हैं नोटबंदी से लेके अब तक, उसके पीछे कौन लोग हैं? यही लोग काम कर रहे हैं। आज गरीबों का अगर 5000 का लोन है और वो नहीं भर पाता तो उसको पुलिस पकड़ के जेल में डालती है। कितनी बार आपने अडानी अंबानी के पैसों के लिए उनको जेल भेजा? कितनी बार उन पर आपने पार्लियामेंट में डिबेट कराई? कितनी बार आपने देश में उनके खिलाफ आवाज उठाई? ऐसा बात कर लेना एक अलग चीज है। मैं किसी पार्टी का अंधभक्ति देख सकता हूं, लेकिन इस तरह की अंधभक्ति मैंने पहली बार देखा कि जीती मक्खी को निकल जाइए और उनसे करिए कि नहीं साहब, अडानी तो बहुत साफ सुथरे आदमी है, वो बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। तो सर एक ही पूछना था निजामुद्दीन जी, शरद पवार जी, ममता बनर्जी आपके जेपीसी के डिमांड को मैं पूछना आप अगर बोलना चाहे तो, इसका रिप्लाई देना चाहे तो, आपको लगता नहीं कि? बिल्कुल जवाब देखिए, ऐसा है कि जेपीसी जो है वो कांग्रेस की कोई अकेले की नहीं होती। अगर जेपीसी बनती तो उसमें बीजेपी के भी सांसद रहते, उसमें जो है पवार साहब के भी सांसद रहते, अजीत दादा के भी उसमें सांसद रहते। अगर उनको लगता है कि ये नहीं हुआ तो वो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो जेपीसी कांग्रेस की अकेले नहीं बनने वाली थी। अगर इस देश में जेपीसी की एक व्यवस्था है कि जब कोई बड़ा इशू देश के हित में आए तो जेपीसी से जांच कराइए, क्योंकि जिस तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं को, बड़ी बड़ी संस्थाओं को मोदी जी तोड़कर खत्म कर रहे हैं, तो ये वो सिवाय एक ही चीज बचती है कि किसी भी भ्रष्टाचार या किसी भी बड़े करप्शन के लिए जेपीसी के अलावा कोई इस देश में बचता नहीं है, क्योंकि उसमें सभी दलों के सांसद होंगे तो उसमें बेईमानी नहीं होगी। ये बात क्लियर सी है। बिफोर आप स्वयं देख रहे हैं कि सीबीआई क्या कर रही है, आप देख रहे हैं। आपने ईडी की हालत आपने देख ही लिया कि ईडी क्या कर रही है। जिस ईडी के डर के मारे राजनेता दल बदल के सरकारों में भाग रहे हैं, ये सरकारें गिराई जा रही हैं। क्या आप पत्रकार हैं, जनरली ईमानदारी से कहिए, क्या आपने नहीं देखा कि क्या हुआ इन 4-5 राज्यों में? ये हमारे दारूवाला साहब बताएंगे कि जितना हुआ वो सब ईमानदारी से हुआ। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने नहीं पढ़ा महाराष्ट्र में उसका जजमेंट कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से यहाँ के जो है विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी की। तो वो सब बातें आप बोल के मुंह मत खुलवाइए दारूवाला साहब। आप बीजेपी में रहिए, आपको मुबारक, लेकिन देश को बख्श दीजिए। आपको भी इनवाइट किया है बीजेपी का भी देश है, मुसलमान सुरक्षित है, दारूवाला साहब का कहना, अली दारूवाला। वो आप डिसाइड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री का राशन वही लेता है जो गरीब है बेचारा, जो खा नहीं सकता, जो कमा नहीं सकता। आपने देश की हालत को इस लायक बना दिया है कि देश में 80 करोड़ आदमी आज भीख के लिए खड़ा है। क्या उसको फ्री का राशन दे तो घर में खाना खाएगा? आप उसके लिए रोजगार नहीं कमाल की बात करिए सर, उसे भीख नहीं, उसे अनुदान कहते हैं सर। So, we'll come to the end of the program. Daruwala sir, you want to respond to what Nizamuddin ji said? You can respond, then we'll come back to 5 राज्यों में किस प्रकार से आप देखते हो विक्ट्री फॉर बीजेपी, कांग्रेस कैसे देखते हो आप? बीजेपी को हराएंगे 5 राज्यों में। मैं आपके पास आता, पहले अली दारूवाला साहब को पूछ तो लूं रिजल्ट। दारूवाला साहब, ये कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है सर, ये इन्होंने महाराष्ट्र में औरंगजेब को ग्लोरीफाई किया, जो टेररिस्ट विचारधारा से आता है। इनकी पार्टी उनको ग्लोरीफाई करती है, सब में पहले। दूसरी बात सर, दूसरी बात कर्नाटका के अंदर, एक सेकंड उधर ही आ रहा हूँ, निजामुद्दीन उधर ही आ रहा हूँ सर, आप जवाब दीजिए। मैं आपके पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूँ। मेरे पार्टी का स्टैंड खुला हुआ है, हम सब धर्म में विश्वास करते हैं, सभी धर्मों में। सर आप ये इतनी फेक पार्टी है निजामुद्दीन सर, एक सेकंड, मैं आपके बात बीच में एक शब्द भी नहीं बोला सर, आप सुनने को तैयार ही नहीं है। आपकी जो डूबती हुई नैया के बारे में आप सुनने तैयार नहीं है सर। यू प्लग योर होल्स इन योर बोट, आप ध्यान से सुनिए। आपको पटकनी दे रहे हैं हम देश में। राइन साहब सुनिए, सबसे पहले इलेक्शन कराते, दूसरे राज्यों में कराते, आप चुनाव से भाग रहे हो इसलिए कि निजामुद्दीन जी सुनिए तो सही, आपके पास आ रहा हूं, जरा सुनिए तो सही सर। ये तो एकदम खेले वाला जैसा डिबेट कर रहे सर। ये निजामुद्दीन बोलिए सुनने तैयार नहीं है सर। बोलिए अली दारूवाला साहब बोलिए। सर डिजिटल पेमेंट के अंदर इंडिया को वर्ल्ड के अंदर सराहनीय
की गई है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये आज वर्ल्ड मांग रहा है। ये जो कहना चाह रहे थे ना, क्या हमारी जो व्यवस्था है एकदम ही टूटी फूटी है, सर ये शायद इंटरनेशनल न्यूज में ये शायद देखते नहीं, शायद इंग्लिश में रहेंगे, शायद देखते नहीं रहेंगे। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया इज रैंकिंग बेस्ट। इजराइल से लेके फिनलैंड, डेनमार्क और सारे यूरोपियन नेशंस ने इंडिया से यहाँ पर डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म मांगा है। ये शायद इन्होंने मिस कर गया। और चलो ये 5 राज्यों के बारे में, इलेक्शन के बारे में मैं कहता हूँ सर, ऑलरेडी एग्जिट पोल दिखा रहा है 9 साल बेमिसाल, जो 9 साल जो काम किया है ये सारे स्टेट्स में रन अवे सक्सेस हो रहा है। और जो स्टेट्स में ये जीते हैं वहाँ पे ऑलरेडी बैकफुट पर है, वहाँ पे इनकी सरकार क्रम्बल हो रही है। सर शिव कुमार जी को ये लोग सीएम क्यों बना रहे? सिद्धारमैया को उन्होंने जब पोर्ट्रे किया तो 5 महीने में सीएम चेंज करने की बारी इन पर क्यों आई? सर यहाँ पर पंजाब को जो इन्होंने जो इनका जो बॉर्डर ओपन कर दिया है पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन को, इसके बारे में, सिक्योरिटी के बारे में ये कुछ तो कहे सर। उसके बाद में जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर, सर सुनो ना, सर सुनो ना, 5 स्टेट पंजाब आपकी सरकार है सर, 5 स्टेट के अंदर, 5 स्टेट जीत रहे के अंदर। एक सेकंड निजामुद्दीन जी, आपके स्टेट के बारे में पूछ रहा हूँ सर। आप जहाँ पे सत्ता में हो उसके बारे में बोलो। अगर यहाँ पे अगर ने क्या यहाँ पे इतना बुरा हाल है तो आपके 5 राज्यों में क्या हाल है, जरा हमें आपके प्रोग्रेस के बारे में सुनाइए, प्रोग्रेस के बारे में सुनाइए सर। अगर आप कर्नाटका में आपको गलत फहमी है, आप स्वप्न देखिए कि वहाँ सरकार बदल रही है। आप सिर्फ स्वप्न देखिए, क्योंकि आपने वो कोशिश किया, वहाँ सरकार गिराने के सारे प्रयास आपके धराशायी हो गए। तो हमारा नंबर नहीं है तो वहाँ तो सरकार क्यों गिर रही है आपकी? आपको मुंह की खानी पड़ी। तो दारूवाला साहब, बीजेपी, आपका कहना बीजेपी इज विनिंग इन 5 स्टेट्स। दारूवाला साहब, क्या आपका कहना है कि बीजेपी इज विनिंग इन 5 स्टेट्स? सर नॉट विनिंग, वी आर गोइंग टू, इनका कांग्रेस वालों को तो डिपॉजिट, सर 22 लोग तो यहाँ पर इनके पास कैंडिडेट फॉर्म ही नहीं भर रहे सर, इनके यहाँ तो फॉर्म ही नहीं भर रहे सर, इनके यहाँ पर इनके ये साधु संतों को, रास्ते के भिखारी को टिकट दे रहे सर ये लोग। तो राइन साहब आपने क्या किया? राइन साहब आप लोग देखेंगे सर, भाजी वाला और वड़े वाले को पकड़ के लाया सर, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है सर। कैंडिडेट नहीं है राइन साहब, कैंडिडेट नहीं है 5 राज्यों में आपके पास। अब या तो दारूवाला साहब बोल रहे हैं या अपनी बात बर्दाश्त कर लें। आपने संसद के इनॉग्रेशन में देख लिया कौन साधु संत कहां से आया। आप इनके जितने सांसद रहे, साक्षी महाराज से राहुल गांधी को तो संसद देख के चक्कर आई सर। ऐसा काम भारत में हो सकता है? सुनिए दारूवाला साहब, बीजेपी में एक नेता इस हैसियत में नहीं है कि राहुल गांधी के डिबेट में वो खड़ा हो सके। जब राहुल गांधी निजामुद्दीन सर शायद राहुल गांधी से बेहतर बात करते हैं। तो राइन साहब 5 राज्यों में होगा क्या? राइन साहब 5 राज्यों में कौन बीजेपी जीत रहा है? कांग्रेस आराम से राजस्थान का बोलिए क्या होगा? कह रहा हूँ आपके जो डिबेट करने वाले चैनल्स हैं, आपके जो आपके भविष्यवेत्ता है, आप उनसे पूछ लीजिए कि मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है। अब तक 40 से ज्यादा इनके नेताओं ने इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन किया है मध्य प्रदेश में। आप छत्तीसगढ़ का रिजल्ट अपने सामने देख लीजिए। कह रहे हैं कि इनके यहाँ टिकट नहीं मिल रहा है। उनको शायद मालूम नहीं है कि आज ये अपने विधायकों का टिकट काट रहे हैं क्योंकि इस पोजीशन में नहीं बचे हैं। राजस्थान में सारा प्रयास करके इनकी मिट्टी पलीत हो गई। आपने देखा कि वसुंधरा को भी नहीं समाज पा रहे हैं जो इनके साथ रहती थी। आज आपने निजामुद्दीन जी, राहुल गांधी सर कहे कि राजस्थान हम हार गए, उसके बारे में जरा टिप्पणी करेंगे निजामुद्दीन सर प्लीज? कौन से चैनल पे राहुल गांधी ने कहा, आप जरा मुझे उसका हवाला दे दीजिए। अच्छा आप बोलो क्या कहा सर, आप बोलो सर, राजस्थान में क्या हो रहा है? राहुल गांधी जी ने क्या कहा, बोलिए सर। राजस्थान, वी आर लूजिंग राजस्थान। अगर आप झूठ की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि हम राजस्थान हार गए, आपने कहीं अलग से आपके लिए कोई चैनल आता है क्या? आप दुनिया के किसी एक चैनल में बता दीजिए जिस पर राहुल गांधी गए और उन्होंने कहा हो। तो राइन साहब कांग्रेस जीत रही है। जस्ट ब्रीफ हिम सर, जस्ट ब्रीफ हिम विद रिकॉर्ड सर। राइन साहब प्लीज रिकॉर्ड से ब्रीफ करिए सर। राइन साहब 5 राज्यों में कांग्रेस जीत रहा है, आपका कहना है? यस, हम 100% जीत रहे हैं, सरकार बनाएंगे। आप 3 दिसंबर को आपके चैनल पे डिबेट में रहेंगे और दारूवाला साहब को बुलाना, इनका स्वागत करेंगे हम वहाँ। बिल्कुल। इंद्रपाल सिंह जी, द फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। इंद्रपाल सिंह जी, हाउ डू यू सी द ट्रिपल इंजन वर्किंग इन महाराष्ट्र? क्या 48 लोकसभा सीट्स में कितना आएगा और जो 288 में से कितना ट्रिपल इंजन ले सकता है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हमारा टारगेट तो जो मोदी साहब ने टारगेट दिया है ट्रिपल इंजन को, वो 40 प्लस दिया है। 48 में से 40 प्लस, तो एक बहुत बड़ा टारगेट दिया हुआ है।
और वो टारगेट हम अचीव करेंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन जब भागेगा तो वो स्पीड कोई नहीं रोक पाएगा। अब की बार 200 पार। अब की बार 200 पार। तो लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस में आप स्वीप करने वाले ट्रिपल इंजन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों लोकसभा सर और चांस ही नहीं है सर। निजामुद्दीन सर आ जाओ, समझो मेरी बात को, डूबती हुई नैया में मत बैठो। दो बाई इलेक्शन सुनिए आप, दारूवाला साहब फिर पढ़ना, महाराष्ट्र में 2 लोकसभा के बाई इलेक्शन होने थे, मोदी जी ने सर सीधा कह अगर दिया समाज का और अपने समाज का अगर आप भला करना चाहते हो तो आप ये नॉन अपीसमेंट छोड़ दीजिए और ये ट्रिपल इंजन सरकार में जुड़ जाइए। अली दारूवाला साहब को इनवाइट कर रहे अलग भाषा कर हैं, रहे हैं। निजामुद्दीन जी इनवाइट कर रहे हैं, ऑफर है। नहीं, हम तो इंद्रपाल जी से कहेंगे कि भैया आप जहाँ पहले थे वहीं बहुत सुखी थे कि आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता था, वहाँ आप राजा की तरह घूम रहे थे। मैं चाहूंगा अभी भी राजा है, अभी भी दादा फिर रिटर्न आएंगे, क्योंकि भी- दादा का जो दिल है वो जो है एक समाजवादी तौर पे जीने वाला आदमी है, वो इन बेईमानों के साथ कभी नहीं रह सकता। थोड़े दिन जाने दीजिए, उनको रिटर्न आना है। और बेजान हमारे तो बहुत सारे लोगों को देखा, और दारूवाला साहब कह रहे हैं कि हम 48 में से 40 सीट जीतेंगे। That's the end. Thanks, Daruwala Sahab, for being on the show. Nizamuddin जय ji, हिंद, वंदे मातरम। thank you बोलो very much, भारत माता Nizamuddin की ji. जय। Inderpal Singh ji, thank you very much for being in the show. Thank you for giving us the time. It was a fantastic discussion. बहुत बढ़िया discussion हो गया। Ryan Sahab, thank you so much. It has been very, very good, and it was very enlightening. All speakers were speaking so well. The points put forward, and as the law is the crystallization of habits and thoughts of the society. When a society degenerates or elevates itself, the legal system reflects its depravity. Whoever rules us, in the state, center or local bodies, you see the 4 pillars of our democracy, the constitution: justice, equality, liberty and fraternity stays intact, unshakable. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. Meet you with more news on India, Maharashtra and Mumbai. Keep watching Nation Now.